We want to continue understanding today in our continuing study of the difference between being religious and being spiritual to see what the Bible says about dead works as opposed to good works and evil works. हम धर्मी होने और आत्मिक होने के बीच के अंतर पर अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि अच्छे काम और बुरे काम के विपरीत मृत काम के बारे में बाइबल क्या कहती है. We saw in our last study that there was a difference between the works of the flesh, evil things that are so obvious that even our conscience tells us about them, and dead works, which could be good works, but works that spring from a corrupt source. हमने अपने पिछले अध्ययन में देखा कि शरीर के कामों के बीच अंतर है. बुरी बातें जो इतनी स्पष्ट है कि हमारा अचेतन हमें उनके बारे में और मृत काम के बारे में बताता है, जो अच्छे काम हो सकते हैं लेकिन ऐसे काम जो भ्रष्ट स्रोत से उत्पन्न होते हैं. And we considered two of them in our last study. हमने अपने पिछले अध्ययन में उनमें से दो पर विचार किया है. Works, for example, that are done reluctantly, grudgingly, without joy, or works done not out of love for God. काम जो अनिच्छा से या हिचकिचाहट से बिना आनंद के किए जाते हैं और ऐसे काम जो परमेश्वर के प्रेम के कारण नहीं किए जाते हैं. Now we want to continue looking at some other works which may look good on the outside, but which are dead in God's eyes. अब हम कुछ और कामों को देखना जारी रखना चाहते हैं जो ऊपर से भले ही अच्छे दिखे लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में मृत है. Works done without zeal. तीसरा मृत काम जिसे हम देखेंगे वह काम है जो उत्साह के बिना किया जाता है. In Revelation chapter 3 verse 15 to 19, we read the Lord speaking to the elder of the church in Laodicea and saying, "You are lukewarm." हम प्रकाशित वाक्य 3:15 से 19 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने लौदीकिया की कलीसिया को प्राचीन से बातें की और कहा, तू गुनगुना है, तू न तो गर्म है और न ठंडा है. You're neither hot nor cold. You're not on fire. तू न तो गर्म है और न ठंडा है, तू ज्वलंत नहीं है You're half-hearted. और तू अधूरे मन का है. And he says, I wish you were either cold or hot. आगे वो कहते हैं, काश तुम या तो ठंडे या गर्म होते. Now in the world there's a saying that something is better than nothing. अब संसार में एक कहावत है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है. But the Lord apparently doesn't believe that. लेकिन प्रभु जाहिर तौर पर उस पर विश्वास नहीं करते. He says, I wish you were cold, dead, or on वो fire. कहता है, काश तुम ठंडे या मरे हुए या ज्वलंत होते. But this half-hearted type of Christianity, he says, I'm not interested in. लेकिन इस आधे अधूरे प्रकार के मसीह धर्म में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. And he says finally in verse 19, therefore be zealous. और अंत में अध्याय 19 में प्रभु कहते हैं, इसलिए उत्साही बनो. Half-hearted works are dead works. आधे अधूरे मन से किया गया काम मृत काम होता है. The Old Testament commandment which Jesus quoted in Mark 12 verse 30 said, we are to love the Lord our एक God. पुराने नियम की आज्ञा का हवाला देते हुए यीशु ने मरकुस 12:30 में कहा कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना है. It doesn't just stop there. यह सिर्फ यही नहीं रुकता. We must love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and all our strength. हमें अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी ताकत से प्रभु से प्रेम करना चाहिए. He said that's the first commandment. उन्होंने कहा कि यह पहली आज्ञा है. In other words, our whole being must be taken up with love for God. दूसरे शब्दों में हमारे पूरे अस्तित्व को परमेश्वर के प्रति प्रेम में ले जाना चाहिए. For example, when you worship the Lord, उदाहरण के लिए जब आप परमेश्वर की आराधना करते there's a हैं lot of difference between wholehearted worship and half-hearted तो worship. पूरे मन से की गई आराधना और आधे अधूरे मन से की गई आराधना में बहुत अंतर होता है. When you praise the Lord, you can say hallelujah, and the other person can say जब hallelujah. आप प्रभु की स्तुति करते हैं तो आप हालेलुया कह सकते हैं और दूसरा व्यक्ति भी हालेलुया कहता है. But there can be a lot of difference between the two. लेकिन दोनों के बीच बहुत अंतर हो सकता है. One, it springs from the depth of his heart. दूसरे में यह उसके हृदय की गहराई से निकलता है. He's really thankful to God and he praises the Lord with all his heart. वो वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद करता है और वह पूरे हृदय से परमेश्वर की स्तुति करता है. But you've gone through the लेकिन ritual. आप अनुष्ठान की तरह कर रहे हैं. You've said the right thing. It's not a sin to say hallelujah. अपने सही शब्द में कहे हालेलुया कहना पाप नहीं है. But it's a dead work as far as you're concerned. It doesn't come from the depth of your heart. लेकिन जहाँ तक आपका संबंध है यह एक मृत काम है क्योंकि यह आपके हृदय की गहराई से नहीं आता है. It's lifeless. यह निर्जीव है. Our worship and our praise must be wholehearted. हमारी आराधना और हमारी स्तुति पूरे हृदय से होनी चाहिए. For example, when we pray,
फिर से यदि आप कुछ लोगों की प्रार्थना करते हुए सुने You listen to some people praying and you go तो to आप sleep. अंतर देख सकते हैं। I mean, they're not saying anything sinful in their prayer, but the whole thing is dead. मेरा मतलब है वे अपनी प्रार्थना में कुछ भी पाप पूर्ण नहीं कह रहे हैं, परंतु सब कुछ मरा हुआ है। You know what a dead prayer meeting is? आप जानते हैं कि एक मृत प्रार्थना सभा क्या होती है? What's a dead prayer meeting? Did people pray for sinful things there? No. एक मृत प्रार्थना सभा क्या है कि वहाँ लोगों ने पापी बातों के लिए प्रार्थना की? नहीं, They prayed for good things, but they were lifeless. उन्होंने अच्छी बातों के लिए प्रार्थना की, परंतु वे निर्जीव थे। Works, prayer, praise, activity done without any zeal is a dead work. काम, प्रार्थना, स्तुति और कोई भी काम उत्साह के बिना किया गया कोई भी काम मृत काम है। The Bible says in Romans chapter 12 and verse 11, in one translation it puts it like this, बाइबल कहती है एक अनुवाद के साथ इसे इस तरह रखते हुए रोमियो 12:11 में that we must be aglow with the Spirit, on fire in the कि Spirit, हमें आत्मा में जगमगाना चाहिए, हर समय आत्मा में सरगर्म रहना चाहिए। fervent in spirit means on fire in the Spirit at all times. आत्मा में सरगर्म का अर्थ है हर समय आत्मा में ज्वलंत। There was a law in the Old Testament in Leviticus 6 and verse 13 पुराने नियम में एक व्यवस्था थी लेव्य 6:13 में that the fire must burn on the altar perpetually. कि वेदी सदा जलती रहनी चाहिए, It must never die out. यह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। Paul told Timothy, fan to a flame that gift that is in you. पौलुस ने तिमोथियुस से कहा जो वरदान तुझमें है उसे उस ज्वाला को हवा दे। There was a danger of it dying out. ज्वाला के बुझने का खतरा था। It's not a question of just exercising them in a half-hearted way. यह सिर्फ उन्हें आधे अधूरे तरीके से अभ्यास करने का सवाल नहीं था। We are to fan to a flame even the gifts of the Spirit that God gives us. आपको आत्मा के उपहारों को भी प्रज्वलित करना है जो परमेश्वर हमें देता है। Just because some other people abuse them doesn't mean that we should ignore them and throw them in the waste paper basket. No. सिर्फ इसलिए कि कुछ अन्य लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें अनदेखा करना चाहिए और उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। Let's exercise them in a proper way. आइए उनका उचित तरीके से अभ्यास करें। A lot of Christian churches today are not probably living in gross sin, but they are lifeless, lacking the burning fire of the Holy Spirit. बहुत सारे मसीह कलीसिया आज शायद घोर पाप में नहीं जी रहे हैं, लेकिन वे निर्जीव है जिनमें पवित्र आत्मा की जलती आग की कमी है। They are not cold, but they are not hot either. वे ठंडे नहीं हैं, लेकिन वे गर्म भी नहीं है। And the Lord told that whole church in Laodicea, because you are lukewarm, I will just spit out of my mouth. और प्रभु ने लौदीकिया की सारी कलीसिया से कहा तू गुनगुना है, इस कारण मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। You see how dead works can lead to a lifeless type of Christianity, which finally the Lord rejects. आप देखते हैं कि कैसे मृत काम एक निर्जीव प्रकार की मसीह धर्म की ओर ले जा सकते हैं, जिसे अंत में प्रभु अस्वीकार करता है। We need to repent of works done without zeal. हमें बिना जोश के किए गए काम से मन फिराने की आवश्यकता है। And then fourthly, dead works are works done without faith. और फिर चौथा, मरे हुए काम बिना विश्वास के किए गए काम हैं। In the Old Testament, there is no such phrase called the obedience of faith. पुराने नियम में विश्वास की आज्ञाकारिता ऐसा कोई वाक्यांश नहीं है। It was only obedience. वहाँ केवल आज्ञाकारिता ऐसा ही कहा गया है। You obey. What the Lord says, you obey. आप उस आज्ञा का पालन करते हैं जो प्रभु आपको करने के लिए कहते हैं। But when you come to the New Testament, you see in the first paragraph in Romans chapter 1 and in the last paragraph in the end of Romans in Romans 16, this phrase repeated, the obedience of faith. जब आप नए नियम में आते हैं तो आप रोमियो 1 के पहले अनुच्छेद और रोमियो 16 के आखिरी अनुच्छेद में इस वाक्यांश को दोहराते हुए देखते हैं, विश्वास की आज्ञाकारिता। James says that faith without works is dead. याकूब कहता है कि काम बिना विश्वास मरा हुआ है। I would also say works without faith are also dead. मैं यह भी कहूँगा विश्वास के बिना काम भी मृत है, Because without faith, it is impossible to please God. क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Supposing you do a good work and it's not in faith, it's a dead work. मान लो कि तुम कोई अच्छा काम करते हो और वो विश्वास से नहीं है, तो वह एक मरा हुआ काम है। Supposing, for example, you pray for half an hour and you pray for a lot of powerful things and you don't believe that God is going to do one of those things.
उदाहरण के लिए आप आधे घंटे के लिए प्रार्थना करते हैं और आप बहुत सारी शक्तिशाली बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है कि प्रभु उन बातों में से एक करने जा रहे हैं। What's the use of that type of prayer? उस प्रकार की प्रार्थना का क्या उपयोग है? What's the use of a 1-hour prayer meeting where you don't believe one single thing that God is going to do for you? एक घंटे की प्रार्थना सभा का क्या उपयोग है जहां आप एक भी बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहे हैं? Isn't that a dead क्या work? यह मृत काम नहीं है? You can have an all-night prayer meeting, which is a dead work because people don't believe. आप पूरी रात की प्रार्थना सभा कर सकते हैं, जो एक मृत काम है क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। Praying without faith is a dead work. विश्वास के बिना प्रार्थना करना एक मृत काम है। In fact, 1 minute of prayer with faith is far more acceptable to God than an all-night prayer meeting, which is just a ritual without faith. वास्तव में 1 मिनट की प्रार्थना विश्वास के साथ पूरी रात की प्रार्थना सभा की तुलना में कई अधिक स्वीकार्य है, जो बिना विश्वास के सिर्फ एक अनुष्ठान है। Works done without faith are dead works. विश्वास के बिना किए गए काम मृत काम है। Now, I'm not against long prayers. Jesus prayed all night. अब मैं लंबी प्रार्थनाओं के खिलाफ नहीं हूँ। यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की And there may be times when we need to do that. और कई बार ऐसा हो सकता है जब हमें ऐसा करने की आवश्यकता But हो। Jesus praying all night was not a dead work. लेकिन यीशु की पूरी रात की प्रार्थना करना मृत काम नहीं था। He prayed in faith. उन्होंने विश्वास में प्रार्थना की। Faith also means personal conviction. विश्वास का अर्थ व्यक्तिगत विश्वास भी है। Romans 14 and verse 22 it says, "The faith which you have as your own conviction before God." हम रोमियो 14:22 में पढ़ते हैं, जो विश्वास तेरा है उसे परमेश्वर के सामने मान ले। We must have a personal conviction about the truths of Scripture. हमें पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों के बारे में एक व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। The faith that you have, it says here, let it be your own conviction before आपके God. पास जो विश्वास है वो यहाँ कहता है, इसे प्रभु के सामने आपका अपना विश्वास होना चाहिए। When you do something merely to imitate what somebody else is doing, जब आप किसी और की नकल करने के लिए कुछ करते हैं or merely because some man of God teaches it without personal conviction, या it's a dead केवल work. इसलिए कि परमेश्वर का कोई सेवक इसे सिखाता है, व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास के बिना यह एक मृत काम है। Maybe it's a good work. हो सकता है कि यह एक अच्छा काम है। Maybe that great man of God teaches that particular doctrine and tells you to do it in some way and you imitate him. It's not going to bring you life. और हो सकता है कि प्रभु का वह महान सेवक उस विशेष सिद्धांत को सिखाता है और आपको इसे करने के लिए कहता है, किसी तरह आप उसकी नकल करते हैं, यह आपके अंदर जीवन लाने वाला नहीं। Imitation always brings death. नकल हमेशा मृत्यु लाती है। Imitating another person. Let me give you one example of it. मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। In Hebrews 11 verse 29 we read that the Israelites by faith crossed the Red Sea. हम इब्रानियों 11:29 में पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने विश्वास के द्वारा लाल समुद्र को पार किया। And then it says the Egyptians imitated them. और And what फिर यह happened? कहता है मिस्रियों ने उनका पीछा किया, फिर क्या हुआ? They drowned. वे डूब गए। What did imitation bring to the Egyptians? नकल मिस्रियों के लिए क्या लेकर आया? Death. Now the मृत्यु। Israelites went through by faith. अब इजरायली विश्वास से होकर गुजरे। The Egyptians didn't have faith. मिस्रियों को विश्वास नहीं था। They just imitated what the Israelites did. उन्होंने बस वही किया जो इजरायलियों ने किया। And it was a dead work, and that's been written for our warning. यह एक मृत काम था, यह हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। You may see another brother doing something in faith. A ministry, for example, he does in faith. आप किसी दूसरे भाई को विश्वास में कुछ करते हुए देख सकते हैं। एक सेवकाई उदाहरण के लिए वो इसे विश्वास में करता है And you imitate that. और आप उसकी नकल करते हैं। What's it going to be? यह क्या होने जा रहा A है? dead work. एक मृत काम। God never called you to do that. परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए कभी नहीं बुलाया। So we're not to imitate another man's ministry or the emphasis that another man has in his ministry. इसलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की सेवकाई की नकल नहीं करनी चाहिए या उस पर जोर नहीं देना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति की The Bible सेवकाई में says, है। prophesy according to the proportion of your faith. Romans 12:6. बाइबल कहती है अपने विश्वास के अनुपात के अनुसार भविष्यवाणी करो। रोमियो 12:6। God doesn't want us to be imitators, like parrots just repeating what somebody else says. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नकलची बने। आप जानते हैं कि तोता जो कोई और कहता है उसे दोहराता है। He wants us to have personal वो conviction. चाहता है कि हमारे पास व्यक्तिगत विश्वास हो। And what you do without personal conviction is a dead work, even if it's a good और work. आप
और जो आप व्यक्तिगत विश्वास के बिना करते हैं वह एक मृत काम है, भले ही वो एक अच्छा काम हो। God has no value for it because it doesn't come out of your personal relationship with God. परमेश्वर के पास इसका कोई मूल्य नहीं है क्योंकि यह परमेश्वर के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध से नहीं आता है। Let me say this for your encouragement. God does not want you to be like somebody else. आपके प्रोत्साहन के लिए मुझे यह कहने दे, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम किसी और के समान बनो। He wants you to be yourself. वो चाहता है कि आप स्वयं बने। He made you to be yourself with a particular personality and a particular background and upbringing. उसने आपको एक विशेष व्यक्तित्व और एक विशेष पृष्ठभूमि और पालन पोषण के साथ आप जैसा बनाया है। Just be thankful and do what you can. बस आभारी रहें और वह करे जो आप कर सकते हैं। And that will be far more acceptable to God than if you try to imitate somebody else. और यह परमेश्वर को कई अधिक स्वीकार्य होगा इसके बजाय आप किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं। Then let me tell you a fifth thing. पांचवा तरीका जिसमें हम मृत काम कर सकते हैं, A fifth way in which we can do dead works is when we do works which may be good works, Christian works, but which are done for personal gain or honor. पांचवा तरीका जिसमें हम मृत काम कर सकते हैं वह है जब हम काम करते हैं जो अच्छे काम हो सकते हैं, मसीह काम हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत लाभ या सम्मान के लिए किए जाते हैं। The Lord told the leader of the church in Sardis, you have a name that you are alive. प्रभु ने सरदीस की कलीसिया के अगुवे से कहा, तुम्हारा एक नाम है कि तुम जीवित हो। Sometimes we can do Christian work to get a name that we are alive. कभी कभी हम एक नाम पाने के लिए मसीह काम कर सकते हैं कि हम जीवित हैं। And we can build up a reputation, and to continue that reputation we keep on doing certain things. और हम एक प्रतिष्ठा का निर्माण कर सकते हैं और उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हम कुछ खास बातें करते रहते हैं। And it looks very spiritual in the eyes of others, but God sees that underlying everything is your motive. You want to get a name that you're alive. और दूसरे की नजरों में बहुत आत्मिक दिखते हैं, लेकिन प्रभु हर बात में अंतर्निहित मकसद देखते हैं। आप एक नाम प्राप्त करना चाहते हैं कि आप जीवित हैं। And what's the result? All your works are dead works. और परिणाम क्या है? आपके सभी काम मृत काम है। Anything that we do to impress another man is a dead work. हम किसी दूसरे मनुष्य को प्रभावित करने के लिए जो कुछ भी करते हैं वह एक मृत काम है। Living work is that which is done to impress God. दूसरी ओर एक जीवित काम वह है जो परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। Living works are done in secret before God's face alone. जीवित काम गुप्त रूप से प्रभु के सामने अकेले किए जाते हैं। Where your left hand does not know what your right hand has done. Where you keep it hidden. जहां आपके बाएं हाथ को नहीं पता कि आपके दाहिने हाथ ने क्या किया है, जहां आप इसे छिपाते हैं। You pray and you don't let anybody know that you pray. आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आप किसी को पता नहीं चलने देते कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। You fast and you don't let anybody know that you're fasting. आप उपवास करते हो और किसी को यह जानने नहीं देते कि आपने उपवास किया है। Those are living works. वे जीवित काम है। But dead works are works done to impress people. परंतु मरे हुए काम लोगों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। And you don't conceal it from the eyes of men. और आप इसे मनुष्य की दृष्टि से नहीं छिपाते। And we could say that those are works which we later on meditate on and glory over. हम कह सकते हैं कि वे काम हैं जिन पर हम बाद में ध्यान करते हैं और उन कामों की महिमा करते हैं। I want you to notice this expression in Acts of the Apostles in chapter 7 and verse 41. मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने प्रेरितों के काम 7:41 में इस अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया है। There Stephen was speaking about the Israelites in the wilderness, and he uses an expression saying, Acts 7:41, that they worshipped the work of their own hands. जहाँ स्तिफनुस इजरायलियों के बारे में कह रहा था कि वे अपने हाथों के काम की आराधना करते हैं। You know what that means? आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? To do something and then to look at your work and say, boy, that was something good I've done. कुछ काम करना और फिर उन कामों को देखकर कहना, यार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। You remember how Nebuchadnezzar walked on the roof of the palace in Babylon? We read in Daniel 4 and verse 30. And he said, boy, this is a tremendous kingdom that I have built. A huge palace with its hanging gardens. And what must people be आपको याद thinking है about कि it? कैसे नबूकदनेस्सर बाबुल में महल की छत पर चला गया दानियल 4:30 में, और उसने कहा यह एक जबरदस्त राज्य है जिसे मैंने बनाया है, एक विशाल महल और इसके झूलते बगीचे और वह सब कुछ, और यह क्या ही अद्भुत है। और आप सोचते हैं लोग इसके बारे में क्या
क्या राय दे रहे होंगे। And then you look out over it, and like Nebuchadnezzar, you say, it's tremendous what I've done, and you're thinking about the opinion that others have about your work. It's a dead work. आप इसे देखते हैं और जैसे नबूकदनेस्सर ने क्या कहा था कि मैंने क्या ही एक महल बनाया है और अपनी महिमा की, और आप भी ऐसा करते हैं कि लोग आपके कामों को देखें और आपके बारे में अच्छी राय दे, पर यह एक मृत काम है। You got to take all those thoughts, throw it in the garbage bin. और आपको ये सभी विचारों को लेना है और कचरे के डिब्बे में डालना It's है। Babylon. ये बाबुल है। What Nebuchadnezzar built was Babylon. And what you're building is Babylon too. नबूकदनेस्सर ने जो बनाया वो बाबुल था, और जो तुम कर रहे हो वह भी बाबुल ही बना रहे हो। Our righteous acts in human eyes are an abomination, fit to be flushed out into the sewage system in the sight of God. हमारे धार्मिक काम मानव दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में सीवेज सिस्टम में बह जाने के योग्य घृणित है। All that is great in man's eyes is an abomination to God. It says in Luke 16, verse 15. जो कुछ मनुष्य की दृष्टि में बड़ा है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह लूका 16:15 में कहा गया है। You know, if you're not going to be radical in eliminating dead works from your life, you'll never be a spiritual man. यदि आप जीवन में मृत कामों को हटाने के लिए अग्र नहीं होंगे तो आप कभी भी आत्मिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। If you do God's work, for example, for a salary, it's a dead work. यदि आप प्रभु का काम करते हैं उदाहरण के लिए और इसे वेतन के लिए करते हैं तो एक मृत काम है। God may give you money to take care of your needs. परमेश्वर आपको आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन दे सकता है। But if you serve the Lord only because you're paid, what's that? परंतु यदि आप परमेश्वर की सेवा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वेतन दिया जाता है तो वह क्या है? You can call it Christian work, but it's not really serving God. आप इसे मसीह का काम कह सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में परमेश्वर की सेवा नहीं है। You're serving God and money. यह परमेश्वर और धन की सेवा कर रहे हैं। May God help us to have our eyes open so that we are free from dead works. ईश्वर हमारी आंखें खोलने में हमारी मदद करे ताकि हम मृत कामों से मुक्त हो जाएं।